Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this short lecture we will highlight the different steps of the Kelvin cycle, and specifically why we have made this lecture individually is because we will discuss how the different components they actually combine and how the different energy molecules they are used in this process that we have obtained from the light reaction. So by the end of this lecture, we will not only end up discussing the Kelvin cycle in detail, but we will also know how one of the very important component of this cycle, the ribulose bisphosphate, it is regenerated, and what is the total number of ATP and NADPH that are utilized during each Kelvin cycle. So the Kelvin cycle, it starts off with the influx of the carbon dioxide through the stomata. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर्स द सेल्स थ्रू स्मेटा एंड देन इट एंटर्स द क्लोरोप्लास्ट. वहाँ पे it finds the molecules that is the ribulose bisphosphate that reacts with carbon dioxide in presence of this very important protein or the most abundant protein in the plant cell known as the ribulose bisphosphate carboxylase. ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो it will form an unstable 6 carbon compound that will immediately break down into 2-3 carbon containing compounds. ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं 3-phosphoglycerate, also known as the 3-phosphoglyceric acid. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो दे विल डेफिनेटली रिएक्ट विद 3 ribulose bisphosphate molecules और अल्टीमेटली ये 3-6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे दैट आर अनस्टेबल. तो ये जब एक ब्रेक होता है तो एक फॉर्म करता है 2-3-phosphoglycerate. तो जब यहाँ पे 3 अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड बनेंगे तो दे विल फॉर्म 6-3-phosphoglycerate मॉलिक्यूल्स. अब ये जो हमारे पास 3-phosphoglycerate मॉलिक्यूल बना है एक, ठीक है, it will attach to or it will react with 1 ATP and activate itself into 1,3-bisphosphoglycerate. यानी कि पहले जो फॉस्फेट ग्रुप था दैट वाज अटैच विद कार्बन नंबर 3. नाउ इट इज़, अब चूँकि यहाँ पे ATP का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, ADP और फॉस्फेट आयन में, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट है इट विल अटैच टू दिस 3-phosphoglycerate and develop or activate into 1,3-bisphosphoglycerate. यानी कि अब कार्बन 1 और कार्बन 3 के ऊपर देयर इज अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट आयन. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल 6 होंगे 3-phosphoglycerate के तो 6 ATPs के साथ ही रिएक्ट करके 6-1,3-bisphosphoglycerate मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट विल फर्दर रिड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ 6 NADPH and give rise to 6,3-glyceraldehyde molecules. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्शन किसकी हो रही है 1,3-bisphosphoglycerate that was activated by these ATPs over here. ठीक है, तो ऑब्वियसली 6 NADPH जो हैं वो 6,1,3-bisphosphoglycerate मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. नाउ दिस इज़ वेयर द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ द रिडक्शन फेज. ठीक है, अब रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate है दैट हैज़ द एबिलिटी to transform into triose phosphate. ठीक है, that further transforms into the glucose molecules. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate का वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इनडायरेक्टली. बाकी जो 5 हैं दे आर गोइंग टू
be converted back into or regenerate into, sorry, this is regeneration, ठीक है, regenerate into ribulose bisphosphate in presence of 3 ATP molecules। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास एक ग्लिसरल्डिहाइड है तो इट विल फॉर्म इनडायरेक्टली हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो है मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लिसरल्डिहाइड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि फॉर दिस प्रोसेस टू मल्टीप्लाई, कि ताकि हमारे पास एक कंप्लीट ग्लूकोज बने, व्हाट वी एक्चुअली नीड इज़ कि ये पूरे की पूरी जो चेन है, ठीक है, और दिस साइकिल है, दिस इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर हेयर। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम डबल करेंगे तो क्या होगा कि 6 कार्बन एटम्स इट विल कंबाइन विद 6 रिबुलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे भी डबल हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि जो टोटल तादाद है जो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बनेगी वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम दिस ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस, ये जहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होती है सबसे पहले, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, देन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, एंड देन इज़ द रीजनरेशन। ठीक है, तो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, और सिर्फ एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड इट इज़ यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें डबल तादाद चाहिए ना फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड से हमारे पास हाफ ग्लूकोज बन रहा होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, सो फॉर दिस टू डबल व्हाट वी वांट इज़ कि ये जो होल रिएक्शन है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई या ये डबल होगा तो फिर ही हमारे पास यहाँ पे जो है एक के बजाय 2 फिर हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे टू हैव 1 कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ATPs कितने यूज़ हो रहे हैं, 6 + 3। ठीक है, दैट इज़ 9। तो जब ये साइकिल डबल होगा तो फिर हमारे पास ATPs कितने यूज़ हो रहे होंगे, 18। इसी तरह से NADPH की भी ऑब्वियसली अगर 6 तादाद है यहाँ पे तो वो कितनी हो जाएगी, 12। when 2 Kelvin cycles they are going to run for the production of 1 complete glucose molecule. ठीक है, so this is the important thing that we wanted to highlight by discussing this Kelvin cycle through a very proper cyclic manner. So this is the end of our video. So do like our video if you have been able to understand the concept of the Kelvin cycle, the number of energy molecules that are made or that are used up in this process. And do share it with other students as well in the comment section. Do mention if you have any question relevant to the topic that we have covered in this video. Do not forget to subscribe to our channel, click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.